Dear students, very good morning to all. Hope you all are fine and safe, staying at your home only. As we were doing the chapter that is the rat trap, so today we have to start a new page, that is the page number 35. It was late in December की रात थी. Darkness was already descending over the forest. सारी की सारी जगह darkness फैली हुई थी. This increased the danger. And what did the darkness do? It increased the danger of the just rat trap seller and increased also his gloom and despair. और उसकी उदासी भी बढ़ा दी. Gloom means उदासी, despair means distress. फाइनली ही सा नो वे आउट. उसने देखा कि कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है. एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर क्या किया उसने? बैठ गया. टायर्ड टू डेथ. इतना थक चुका था कि मर जाएगा. थिंकिंग दैट दिस हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका आखिरी समय आ गया है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने जो है सिर ग्राउंड के ऊपर लेटाया, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी. A hard regular thumping. A thumping sound was there. थप थप. There was no doubt as to what that was. कि कोई डाउट नहीं था कि वो क्या थी. He raised himself. वो खड़ा हुआ. Those are the hammer strokes from an iron mill. He thought. उसने सोचा कि ये hammer strokes की आवाज़ है, यानी कि कोई कुल्हाड़ी के बजने की. There must be people nearby. Maybe it is also possible that people are around me. He summoned all his strength. उसने अपनी सारी एनर्जी लगा दी. Got up and staggered in the direction of the sound. Staggered means followed the direction of the sound. The Ramsjo Iron Works, which are now closed down, Ramsjo Iron Works that is closed now, were not so long ago large plant. एक बहुत बड़ा प्लांट था. with smelter, बहुत सारे स्मेल्टर थे. रोलिंग मिल थी. एंड फौजी भट्टी थी. In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal. कि कैनल यानी नदी के रास्ते से बहुत सारे सामान आता था, बहुत फुल लोड सामान, which led to a large inland lake. And what was there? Like to an inland lake was there. And in the winter time में the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. कि जो कैरेट्स में से वो निकलती थी, कॉयल यानी कि कोयले की जो डस्ट, उसकी वजह से काले हुए होते थे विंटर टाइम में. डियर स्टूडेंट, हियर इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द Ramsjo iron mill at the two different time. One is of the summer time and another is of the winter time. You must learn it, okay? And here is during one of the long dark evening, एक बार रात को, just before Christmas, Christmas से पहले, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnaces waiting for the pig iron. They both were waiting for the pig iron that were coming and which had been put up in the fire, जो fire में था, to be ready to put on the anvil, कि उसको जलाने के लिए रखना था. Even now and then one of them got up to stir of glowing mass with a long iron bar. Mean to say like this iron bar was there. और एक बड़ी सी जो है कढ़ाई थी या कुछ भी, और इसके अंदर ये लोग ऐसे ऐसे हिला रहे थे उसको. ओके, जो भी मतलब आयरन स्टिक के साथ, ओके, जो भी लोहा जल रहा था उसके लिए. एंड रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट, थोड़ी देर हिला के आते थे फिर आ जाते थे. ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, और परस्पिरेशन के साथ ड्रिप कर रहे थे. दाउ एज वॉज द कस्टम, दैट वॉज जस्ट द ट्रेडिशन, इट वॉज जस्ट डूइंग टू डू. ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन shoes. What he was wearing, the man who was just dripping with the perspiration, he was just wearing like a long shirt and a pair of wooden shoes. All the time there were many sounds to be heard in the forge. बहुत सारी साउंड्स थी सुनने के लिए वहाँ. द बिग बैलोज ग्रॉन्ड एंड द बर्निंग कॉयल क्रैक. बिग बैलोज, बड़े बड़े लोहे के तड़कने की आवाज़, और कोयले की भी क्रैक होने की आवाज़, जैसे तड़क तड़क की आवाज़ होती है वैसे. द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. ग्रेट डील ऑफ क्लैटर मतलब बहुत सारा शोर हो रहा था. माँ मतलब माउथ में, भट्टी के मुंह में वो क्या डालता जा रहा था? चारकोल डालता जा रहा था. जैसे गदर मूवी का एक सीन है, उसमें वो बच्चा चारकोल डाल रहा है ना, लाइक टू बी दैट. आउटसाइड रॉड द वाटरफॉल, बाहर से वाटरफॉल की आवाज़ है. एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ. जो ब्रिक टाइल यानी कि जिस टाइल में, यानी फर्श कैसा बना, वो ईंटों के फर्श के ऊपर जो है रेन की बूंदों की आवाज़ें आ रही हैं. इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. And what was there? इन सारी आवाज़ों के अंदर जो है ब्लैक स्मिथ ने नोट नहीं किया था कि एक आदमी जो है वो अंदर आया है और भट्टी के पास आकर खड़ा हो गया.
Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. जो सूटी पेन्स यानी कि जो उस भट्टी में से गरम गरम हवाएं आ रही हैं, उसमें जो है एक गरीब के लिए शरण लेना यहाँ बहुत अच्छा हो सकता था। वाई? क्योंकि सर्दी के अंदर खुद को गर्म करने का ये बड़ा बेस्ट तरीका है। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, खुद को गर्म करने के लिए फायर के सामने। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, उसने उस षड्यंत्री की तरफ देखा। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, जो उस तरह के लोग करते हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी सी दाढ़ी, डर्टी, गंदा, रैग, फटा पुराना, विद अ बंच ऑफ रेड डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। डेंगलिंग मीन्स हैंगिंग, और उसके सिर पे क्या टंगे हुए हैं, चेस्ट पे जो है वो क्या टंगी हुई हैं, रेड ट्रैप्स टंगे हुए। ही आज परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगी रुकने की। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉटेड अ हॉटी कंसेंट, उसने ऐसे सिर हिला दिया। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, कुछ नहीं बोला, सिंगल वर्ड नहीं बोला। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, इवन ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो कहता कि मैं यहाँ बात करने नहीं आया, मैं यहाँ पर खुद को गर्म करने आया हूँ। इन दोज डेज द रामजो आयरन मिल वॉज ऑन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, and one that is the iron master that was very much prominent at the Ramsjo iron mill on that time. And what was the aim of that iron master? Just to ship or to send the good iron in the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वो दिन और रात दोनों टाइम आता था देखने के लिए काम बढ़िया चल रहा है। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of the inspection. And at night also for the nightly inspection he came there. Naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags, कि उसकी जो है गीले कपड़ों में से पानी मतलब निकल रहा था, भाप निकल रही थी, स्टीम निकल रही थी। गीले कपड़े को कभी गैस के सामने ला के रखो, उसमें से स्टीम निकलने लग जाएगी। एंड द सेम वॉज हैपनिंग विद दैट वेगाबॉन्ड। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, उसने नहीं फॉलो किया। who had hardly declined to look at the stranger, even iron blacksmith ने तो देखा भी नहीं था, but iron master he walked goes up to him, उसके पास गया, looked him over very carefully, उसे देखा बहुत अच्छे से, then tore off his slouch hat to get a better view of his face, उसका फेस पहचानने के लिए जो है उसके सिर से हैट उठाई। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स वुल्फ, ही सेड, कहता ही तो आप हो नील्स ऑफ, हाउ यू डू लुक, कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज, उसको तो पता भी नहीं था कि इसका नाम क्या और ये है कौन। बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉन, और अगर ये आदमी मुझे ये समझ रहा है कि मैं इसकी पुरानी जान पहचान का हूँ तो श्योर क्या पता ये मुझे थोड़े बहुत पैसे ही दे दे। देयर फॉर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, कि मैं ऑल एट वंस मीन सडनली, आई डू नॉट वॉन्ट टू चीट हिम, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी हिम लाइक दिस। येस गॉड नोज थिंग्स हैव डन डाउन हिल विद मी, ही सेड, कहता हाँ भगवान जानता है कि मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर कहता अपनी पोस्ट से तुम्हें रिज़ाइन नहीं देना था, दैट वॉज द मिस्टेक, यही तुम्हारी गलती है। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट वुड नेवर हैव हैपन, अगर तुम सर्विस में होती या मैं सर्विस में होता तो ऐसा नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो अब मेरे साथ घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, यानी मैनर के हाउस में जाने के लिए। बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ठीक है, उसको पता था कि ये मुझे पुरानी जान पहचान का समझ रहा है, मुझे कुछ और समझ रहा है, बट प्लीज़ मीन्स खुशी, उसको ट्रैम्प को फिर भी इस चीज़ से खुशी नहीं होती, वो कहता मुझे कोई खुशी नहीं है इस चीज़ की। Okay my dear student, we have done up to the page number 36 and in the next lecture we will do the 37 page number. Thank you, have a nice